periodic table that we have. Now you don't have to copy it. ये periodic table मैंने इसलिए यहाँ पे बनाया कि मैंने यहाँ पे periodic table का chart नहीं लगाया. अगर मैंने यहाँ पे periodic table का chart लगा दिया होता तो मैं periodic table बनाता नहीं. It is just for a reference that I have made it here. So you don't need to make it. सामने reference है आपके पास. जब हम इस periodic table की बात करते हैं तो be very clear, इस periodic table को एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था. This periodic table was made by the contribution of many of the scientists. And साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या सजेशंस थे कि ऐसे बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसे बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा. सो दिस इज नॉट जस्ट मोज़ले's periodic table, it is not just Bohr's periodic table. Bohr था, Bury था, and so many other people were there who contributed towards it. So this is a modern periodic table. अब इस modern periodic table में the elements are arranged in the period and rows. These vertical columns, which are the columns, these are called groups, and we have the modern periodic table numbering as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. These are the modern numbering of the groups. We have the Mendeleev's periodic table numbering, and that tells us this is 1A, this is 2A, this is 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, and this. The complete group is termed as 8. इसको 8A या B नहीं लिखते क्योंकि सिर्फ 8 ही ग्रुप है, 8 ग्रुप. This is 1B, this is 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and this is 0. The Mendeleev's periodic table numbering is according to the valency, that is the formula of their oxides and the formula of their chlorides. So it is according to that. तो उसके हिसाब से हमारे पास ये periodic table की numbering आ जाती है. Now, having talked about this numbering, अब यहाँ पे हमारे पास these horizontal rows are called periods. Periods के अंदर हमारे पास this is the first period, this is the second period, this is the third period, fourth, fifth, sixth, and seventh. These are the periods. Now these periods, when we find out the groups of periods की बात करते हैं, तो हमारे पास first period के अंदर 2 एलिमेंट है, this is called a very short period. Second के अंदर और third के अंदर हमारे पास 8 elements हैं, these are called short periods. Then we have fourth and fifth, they have 18 elements each, they are called long periods. The sixth has 32 elements in it, this is called a very long period. The seventh is incomplete, it is called an incomplete period, but it is supposed to have 32 elements. कई कई पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट्स के नाम लिखे होते हैं. अब देखो यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात है, कुछ एलिमेंट्स के नाम
देखो नाम किसी भी एलिमेंट का तब दिया जाता है वंस दैट एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड, इट्स प्रॉपर्टीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। बट देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन, कोई कहता है मैंने डिस्कवर कर लिया, कोई कहता है मैंने डिस्कवर कर लिया। तो ये नए एलिमेंट्स को एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया गया है जस्ट टू नेम these undiscovered elements so that they can be referred to properly. तो रेफरेंस किस तरीके से दिया गया? इट इज सिंपल नंबरिंग सिस्टम। हमारे पास नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ 0 इज nil, 1 is un, 2 is bi, 3 is tri, 4 is quad, this is pent, this is hex, sept, oct, n। ये जो यहां पे हमने वर्ड प्रीफिक्सेस लिए हैं, ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस के हैं। मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस से लेने का पर्पस एक था, वो ये कि इनमें से किसी भी प्रीफिक्स का अल्फाबेट कॉमन नहीं है, सबके अल्फाबेट डिफरेंट है। नाउ यू माइट हैव सेड सर ये हेक्स हेप्ट होता है, लेकिन ये हेप्ट नहीं है, ये सेप्ट है। ठीक है, यहां पे ये नॉन है लेकिन ये एन है, जिससे कि कॉमन ना हो। ठीक है, अब ये ट्राई टेट्रा की जगह ट्राई और क्वाड है। यहां पे इस पर्टिकुलर सिस्टम का रीजन ही ये है कि दे शुड नॉट बी रिपीटेड। अब यहां पर अगर मान लीजिए आपको एक लास्ट यहां पे जो नोबल गैसेस के नीचे होनी चाहिए 118 एटॉमिक नंबर की, तो 100 एटॉमिक नंबर का 118 एटॉमिक नंबर है, तो वी विल राइट इट एज 118। 118 इज एंड दिस, इसके आगे EM लगा देते हैं, सिंबल वाइज इट इज। ठीक है, सो दिस इज द नेमिंग सिस्टम ऑफ द एलिमेंट्स बियॉन्ड 100। ठीक है, या अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उनको इस तरीके से नेम किया जा सकता है। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लियर? पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दीज आर डिसाइडेड बाय द वे ऑफ फिलिंग। जब तक आपके पास एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आते चले जाते हैं, दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर पीरियड। अब जैसे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। अब ये देखो, सीधा सीधा देखो, दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड। यू कैन सी फोर्थ पीरियड के अंदर एक 3D आ गया, 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, therefore 10 electrons are more in case of fourth period. Then this is the fifth period, again 18. This would be the sixth period, and very obviously this is the seventh period. So as you can see, the number of elements in a particular period is decided by the electronic configuration. We are talking about that we have started with the one particular shell, and till that time we do not move to the next shell, all the elements within those numbers are going to be in that particular period. यानी कि अगर मैंने 7 से स्टार्ट किया तो जब तक मैं 7 से बाहर नहीं निकलता, जब तक 8 पे नहीं पहुंचता, यहां पे आएगा 8s। जब तक ये फिल नहीं होना शुरू होता, तब तक सारे के सारे एलिमेंट्स whichever are there, they will belong to the seventh period। क्या समझ आई बात? ओके,
So this is what it is. ये जो configuration सामने लिखा हुआ है, this is capable of accommodating 118 electrons. 119 इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो 8s में जाएगा. Is it clear? Now, अब यहाँ पर हमने ये जब बनाया है, पूरा का पूरा configuration बनाया, ये पूरा का पूरा periodic table बनाया है, तो इस periodic table को और भी तरीके से classify किया जाता है. These are classified in terms of blocks. Clear? The block of an element is decided by the last electron being filled. Whichever orbital or whichever subshell the last electron is being filled, the element belongs to that block. अब जैसे कि these two, ये दोनों, these belong to S block, क्योंकि इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो S सबशेल में जा रहा है. अगर हम इनकी बात करें, ये these belong to P block. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये कि हीलियम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में नहीं जा रहा, वो s में ही जा रहा है. बट बी वेरी क्लियर, ये जो पीरियोडिक टेबल बना है ये भी, इसका भी प्राइम क्राइटेरिया एटॉमिक नंबर नहीं है, इसका प्राइम क्राइटेरिया एटॉमिक मास नहीं है, इसका प्राइम क्राइटेरिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है, इसका प्राइम क्राइटेरिया फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज है. All the elements having the similar chemical properties are grouped together, and therefore to keep that right, this helium, it is not put along with this particular element, it is put along with that element, क्योंकि helium भी unreactive है noble gases की तरह. So that is why helium is not a p block element, still it is put with a noble gas that is a p block. क्योंकि यहाँ पर भी जो dominating property है, that is the chemical properties, the similarity in the chemical properties. Okay, तो ये हमारे पास है. तो this one is the p block, and from here to here, this is the d block. Clear? कोई कंफ्यूजन? अब अगर आपको ये पता करना है, जैसे कोई एलिमेंट आपको दे रखा है, अब यहाँ पे जो बचे हुए दो ग्रुप्स हैं, these are called the f blocks. Clear? यहाँ पे S और P ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है. The S and the P block elements are termed as representative elements. The D block elements are termed as transition elements, while the F block elements are termed as inner transition elements. ये नाम याद रखने हैं. Okay? कई बार होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट दिस प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड. अब तुमको इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है. द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मींस एस एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ट्रांजिशन इज द डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन इज द एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक मैंने लिखा नहीं है, दैट एफ ब्लॉक इज रिटन हियर, दो लाइनें यहां पर लिखी जाती हैं उसकी. ओके, ये एफ ब्लॉक यहां पर जैसे ये लैंथनम से स्टार्ट हो रहा है, तो लैंथनम का एटॉमिक नंबर इज 57. ठीक है, हाफनियम का इट इज 72. 57 से लेकर 72 के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं, there are 14 elements in between. Those belong to the first inner transition series. These are called lanthanoid elements. क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है. अगर जगह होती तो हम यहाँ पे उनको लिख देते. That's the problem here. और कहाँ लिखे बताओ? और लंबा बनाएंगे तो यार ये बोर्ड पूरा भर गया इसमें. और यहां पर हमें इस पार्ट को ब्रेक करके इसको ऐसे एक्सटेंड करना पड़ता है. यहां पे मैंने 10 लिखे हैं तो ये इतना लंबा हो गया. यहां पे 14 और लिखता मैं. अभी हमारे पास 18 है, तब 32 रोज बन जाते. अच्छा नहीं लगता ना. ठीक है, और उसमें एक और पंगा है कि जब हम एक्टिनॉइड सीरीज की बात करते हैं, एक्टिनियम के बाद यहां पे स्टार्ट, ये एक्टिनियम हमारे पास नंबर कितना है? रेडियम का 88 है, तो दिस इज 89. ठीक है, और यहां पर 104 आता है. तो अब वो 89 से 104, अब इनमें से भी बहुत सारे एलिमेंट सिंथेटिक हैं. यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं. अब उनमें से कुछ डिस्कवर्ड है, कुछ डिस्कवर्ड नहीं है. पता चलता है मैं इसको इतना लंबा खींचता हूं, बीच में कुछ चीजें ही गायब है. अच्छा नहीं लगता ना. इसीलिए इसको एक्सटेंड नहीं किया गया. बी वेरी क्लियर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी वही फ्लॉज है जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थे, बल्कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ज्यादा फ्लॉज है, मेंडलीव में कम थे. बट फिर भी जस्ट फॉर द, वो कहते हैं एस्थेटिक्स, दिखने में अच्छा है.
पता नहीं लिखने में कहाँ अच्छा है तो है। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये हमारे पास ब्लॉक्स आ गए। अच्छा, कई बार आपके पास एक एलिमेंट आता है, जैसे आपको मान लीजिए एक नंबर दे दिया जाए, आपसे पूछा जाता है कि विच ब्लॉक इट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू, या सीधा सीधा पूछा जाता है कि विच पीरियड एंड ग्रुप द एलिमेंट बिलोंग्स टू। अब उसके लिए what you need to do is you will have to write the electronic configuration of that particular element. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लिखनी ही लिखनी है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो ये जो सीरीज है ये याद कर लीजिए, या वो जो डायग्राम मैंने आपको बताया था वो याद कर लीजिए। क्लियर? इसमें एक भी गलती एंड गॉन, फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट्स से हमें कहा गया वी नीड टू फाइंड आउट द group and period of atomic number, let us say 47. ठीक है, 47 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए ये? 18 हो गए ना। फिर 4s2 3d10 ये कितने हो गए? 30। फिर 4p6 कितने हो गए? 36। 5s2 38। फिर आएगा 4d 10 में गड़बड़ हो जाएगी। अरे छोड़ना यार, टेंशन ना ले, ठीक है। 4d9, ठीक है। देखो बेटा, जब हम ग्रुप और पीरियड डिफाइन करना चाहते हैं तब हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कौन सा एक्सेप्शन है कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ओके, तो यहां पे हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब देखो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या करना होता है। ये 4 तक जा रहा है, यहां से 5 शुरू हो गया। So this tells me this, the largest n value in the entire electronic configuration, the largest n value gives me the period number. So this element belongs to the 5th period. तो electronic configuration लिखेंगे, whichever is the 5th largest number of value of n, वो इसका period है। Is it okay? ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया, तो दिस इज अ d ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज अ d ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, समझ आई बात। अब बात आई ग्रुप की। तो ग्रुप निकालने का मतलब ये है कि जहां आपका हाईएस्ट n वैल्यू है उसके आगे जितने इलेक्ट्रॉन है सारे ऐड कर दो। तो यहां पर दिस इज 2 + 9 11, so this is 5th period 11th group, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये तो था एक करेक्ट वे। अब इसका एक इजी वे है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्किंग इज वेरी रेयर टू फाइंड, और जो इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्किंग होते हैं उनको हम टॉपर कहते हैं। देखो, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं वो बहुत सारी चीजें करते हैं, दे यूज द लॉन्ग वे, बट दैट लॉन्ग वे इज द श्योर वे। आंसर उनका आएगा बट उनको टाइम लगता है, ठीक है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं होते, वो रट्टू होते हैं, रटने वाले। वो क्या करते हैं, अरे इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं, एंड देयरफॉर दे डू इट फास्ट। फाइन। अगर इंटेलिजेंट और आलसी होता है तो वो फॉर्मूले पे फॉर्मूले रटता चला जाता है, अगर उसको उस फॉर्मूले के अलावा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो वो उड़ जाता है, ठीक है। हार्ड वर्किंग होता है, उसको टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए उसका कोर्स खत्म नहीं होता। दैट्स द प्रॉब्लम।
इसलिए हार्ड वर्किंग अकेला टॉपर नहीं होता, सिर्फ इंटेलिजेंट और आलसी टॉपर नहीं होता। जो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है उसको फॉर्मूले भी पता है, और अगर फॉर्मूला नहीं चलता तो उसको लॉन्ग मेथड भी आता है, और इसलिए वो हर तरह का क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हुआ तो इस तरीके से कर डालेगा। एंड दैट्स व्हाट द टॉपर इज। क्लियर? अब तुम अपने आप को डिसाइड कर लो तुम कौन सी कैटेगरी में हो। आई एम नॉट गोना डिसाइड दैट। ठीक है? जो हार्ड वर्किंग लोग हैं उनके लिए ये तरीका है। ठीक है? ओके? यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इस बात को बिल्कुल मत सोचो क्या एक्सेप्शन है क्या नहीं है। आप आराम से लिखिए, जहां से आपका हाईएस्ट एन वैल्यू शुरू हो रही है वहां पे खत्म कीजिए। जो एन वैल्यू है दैट इज द मेन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? और उसके बाद यू स्टार्ट ओवर विद कि कितने इलेक्ट्रॉन, दैट इज द ग्रुप नंबर। पीरियड आ गया, ग्रुप आ गया, ब्लॉक आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर? अब इसका छोटा सा शॉर्टकट है, शॉर्टकट छोटा सा ही होता है, वो ये, इनके एटॉमिक नंबर याद रख लो। इनके एटॉमिक नंबर याद रख लो। इसका है 2, इसका है 10, इसका है 18, इसका है 36, इसका है 54 और इसका है 86। अब देखो, जितना शॉर्टकट करते चले जाओगे उतनी ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ेंगी। बी वेरी क्लियर, शॉर्टकट मीन्स मोर लर्निंग, हार्ड वर्क मीन्स मोर टाइम। क्लियर? यू हैव टू बैलेंस इट। मेरा विचार ये है, मैं खुद बहुत आलसी हूं, बट ऑब्वियसली यू आर नॉट गोना फॉलो मी। आई बिकेम अ टीचर, तो मैं तो याद भी नहीं करता था, बट कुछ चीजें याद हो जाती थी तो शॉर्टकट मार दिया करता था। तुम्हें दोनों चीजें समझनी है। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। क्लियर? अब यहां पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 47, दैट वाज गिवन। अब 47 से पहले कौन सा नंबर है? 36। 36 इज क्रिप्टन, क्रिप्टन बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। ठीक है? तो 36 के आगे 54 से नीचे, that will belong to the fifth period. 47 minus 36, 11th group. ये शॉर्टकट है। और चलो एक मीडियोकर कट निकालते हैं, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। ठीक है? सीधा सीधा लिखो, क्या है वहां पे? क्रिप्टन है ना, राइट इट क्रिप्टन। क्रिप्टन का मतलब है 4p6। ठीक है? यहां पे चला गया कितना? 36 गया, बचा 11, 5s2 2, 4d9। इतना लिखने की जगह इतना लिखना है, पर याद रखना। आई एम पर्सनली फीलिंग ये ज्यादा अच्छा है। थोड़ा शायद इसमें बल्कि ज्यादा टाइम लग जाएगा सोचने में, इतने में सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है? क्लियर? और एक मेरा सिंसियर सजेशन है, कैसे भी करके ये पीरियोडिक टेबल याद कर लो, इसे रट मारो। ठीक है? और रटने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज, कोई भी पेपर हो, नारायणा का हो, स्कूल का हो, आईआईटी का हो, जो मर्जी पेपर हो, आईआईटी एडवांस हो, आईआईटी मेंस हो, या कोई कॉम्पिटिटिव पेपर हो, कोई भी पेपर हो, केमिस्ट्री अगर उसमें आ रही है तो उस जो भी आपको रफ शीट दी गई है उस इंस्टीट्यूट की तरफ से, यानी कि नारायणा की तरफ से दी गई है, तो नारायणा के क्वेश्चन पेपर पर एक कॉर्नर में पीरियोडिक टेबल बना लो। अगर तुम्हें याद है तो उसको पूरा बनाने में हार्डली 1 मिनट लगता है। मैंने बोर्ड पे बनाया है, टाइमिंग चेक कर लेना, आई डोंट सपोज मोर देन 1.5 मिनट लगे हैं। 1.5 मिनट में, 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये पीरियोडिक टेबल आप बना लो। क्लियर? ऐसे फालतू के क्वेश्चन तो इसके बनते ही खत्म हो जाएंगे।
इज इट क्लियर? और ना सिर्फ ये वाले फालतू क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, बॉन्डिंग के क्वेश्चन, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे हिंट मिल जाएगा। ठीक है? और हां, किसी रफ पेपर पे हरगिज मत बनाना। जो आपको वहां से मिला है, क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट जो भी मिली है, यानी कि स्कूल से अगर तुम्हें आंसर शीट मिलती है, स्कूल का एग्जाम कर रहे हो, तो आंसर शीट पर बनाना, क्वेश्चन पेपर पर नहीं। क्लियर? बिकॉज द टीचर माइट नॉट बी श्योर कि तुम्हें ये याद है, एंड विल बी कंसिडर्ड चीटिंग। तो इसीलिए उस चीज पर बनाना जो तुम्हें वहां से मिली है। इज इट क्लियर? बनाओ और अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम इसे ग्रुप, पीरियड्स निकाल सकते हैं, ब्लॉक बता सकते हैं। इज इट क्लियर? Once we have done this, now we are going to talk about the properties. Periodic table हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, बहुत सारी। क्लियर? इस पीरियोडिक टेबल से अगर हमें थोड़ा सा इसका समझ में आ जाता है, तो हम एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज यहीं पे निकाल देंगे। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं खत्म की जा सकती है पूरी। हमें करनी नहीं है, हम करेंगे भी नहीं, पर की जा सकती है। लेकिन पीरियोडिक टेबल करते हुए देयर इज समथिंग कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। Periodic properties are those properties which repeat after certain interval of elements. Those are termed as periodic properties. These periodic properties are similar in a group and they change gradually in a period. So those are termed as periodic properties. Clear? लिख लो, बड़ी देर से सत्संग में बैठे हो। Periodic properties. The properties which repeat after a certain number of elements. The properties which repeat after a certain number of elements are termed periodic properties. Full stop. These properties are characteristic, that is similar. These properties are characteristic, that is similar for a group. These are characteristic that is similar for a group. Full stop. These change gradually. These change gradually in a period. These change gradually in a period. Clear? Now we need to define what are the periodic properties. अब देखो, एक बड़ा घटिया सा क्वेश्चन एक बार हमारे टीचर ने क्लास में पूछा था। ठीक है? वो घटिया सा क्वेश्चन ये था कि when we move, अच्छा, जब भी हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल स्टडी करने का एक तरीका होता है, एक टर्म होती है। Whenever we talk about any of the properties, we always talk about moving down a group and moving across a period. Down the group, very obviously you are moving top to down in a group, and across the period always means left to right in a period. कभी कभी मजे से पंगे लेने वाला क्वेश्चन होता है, what happens when we move right to left in a period? अब तो उर्दू वाली बात हो गई ना, उर्दू लिखने वाली बात हो गई, उल्टा चल रहा है जी। तो अगर आपका ये क्वेश्चन दुबई में पूछा गया है या पाकिस्तान में पूछा गया है, तो वहां पे राइट टू लेफ्ट इन अ पीरियड वाला क्वेश्चन होगा। लेकिन भारत में या बाकी देशों में इट विल बी लेफ्ट टू राइट। क्लियर?
So that is what we have as the moving. अब यहाँ पर अब हम मूव करते हैं तो एक हमारे टीचर ने बड़े प्यारा सा सवाल पूछा था. On moving left to right in a period and on moving top to down in a group, the atomic numbers increase. होते हैं ना? क्यों? हाँ, हमने भी बड़े अक्लमंदी वाले जवाब दिए थे. शेल इंक्रीज होता है, चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है. हमने सारी अपनी नॉलेज ठोक डाली. बिल्कुल लास्ट बेंच पे बैठे हुए एक स्टूडेंट ने ऐसे ही जवाब दिया था, अरे ऐसे ही तो अरेंज किया है, और वो चुप हो गया. सर कुछ नहीं बोला, किसने बोला? वो चुपचाप बैठा रहा कि अभी मार पड़ेगी, अभी गालियां पड़ेगी, क्या बोल रहा है? कहता नहीं, दैट्स द आंसर, इट इज अरेंज इन दैट मैनर. क्या वाहियात सवाल था, क्या वाहियात जवाब था. ऑब्वियसली आंसर ये सही है. The atomic numbers in a periodic table increase across the period. They increase down the group because it is arranged in that manner. It is arranged in the order of atomic numbers. The elements having the similar properties are arranged together. So that's what they have done. Clear? So that's what we have as a periodic table and its arrangement. अब एक चीज और. Atomic number, atomic mass, density, melting point, boiling point are not periodic properties. ये सारी periodic properties नहीं हैं. Clear? Now we are going to list the periodic properties. Periodic properties हैं कौन सी? We are supposed to do 4 periodic properties. ज़्यादा नहीं, 4 कर दिए बस. ठीक है? The first property, atomic and ionic sizes. Atomic and ionic sizes. ठीक है? Second, ionization energy. Third, electron gain enthalpy, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है. इन दोनों में एक डिफरेंस है that we are going to do, but at this moment for the time being we are talking about them as the same. ठीक है? And fourth one, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कुछ लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की भी बात करते हैं. फाइन इनफ, यू विश टू राइट इट, गो अहेड. ठीक है? These are the 4 periodic properties that we are going to discuss about. That's it. बस इस पूरे पीरियड पे चैप्टर के अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज ही हमें डिस्कस करनी है. ओके? ठीक है? नाउ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक साइज. देखो बेटा, कुछ टर्म्स होती हैं इंग्लिश में जिनके एक से कहीं ज्यादा मीनिंग होते हैं. जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता व्हाट इज योर साइज, यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु द पर्सन इज. अगर वो शू बनाने वाला व्यक्ति है तो उससे अगर आप पूछोगे, वो पूछेगा व्हाट इज योर साइज, देन यू माइट बी आंसरिंग इट इज 7, मे बी 8, मे बी 9. दैट्स अ शू साइज. ठीक है? इफ द पर्सन इज अ टेलर, you might be giving the shirt size. If he wants to make the trouser, you might be giving the waist size and your length. Clear? If the person is a doctor, then you might be giving your weight. So, depending on the person who has asked you this question, the answer would change. Clear? So in the same manner, जब हम बात करते हैं size of the atom, so it could be volume, it could be surface area, it could be radius, it could be mass, it could be atomic number, it could be anything. So we need to define the size. Clear? Size of an atom is the radius of an atom. Now, important thing, radius also needs to be defined. Radius of an atom, by definition,
is the distance from the center of the nucleus to the center of the outermost electron. That is termed as the radius of an atom. ठीक है, लिखो क्या यार, लिखते नहीं हो फिर कहोगे लिखवाते नहीं है. Atomic size. The size of an atom is the radius of an atom. The size of an atom is the radius of an atom. Full stop. The radius by definition is the distance. Radius by definition is the distance from the center of the nucleus, the distance from the center of the nucleus to the center of the outermost electron. This is what is defined by the size of an atom. This is what is defined as the radius of an atom. And the most important thing about this radius of the atom is it can never be determined. Heisenberg ने क्या बोला? The outermost electron can, for that matter, the position of any electron can never be determined. उसका जो error है वो भी बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए हम कभी ये exact radius of an atom determine नहीं कर सकते. तो इसी वजह से जब भी हम radius of an atom की बात करते हैं, then in that case we have certain indirect ways to determine the radius. और इसीलिए हमने अलग अलग तरह के रेडियस डिफाइन कर रखे हैं. जो सबसे पहला रेडियस हमने डिफाइन कर रखा है, that is called covalent radius. Covalent radius. Write a definition. Covalent radius. Half of the distance between the center of nuclei, half of the distance between the center of nuclei of two atoms of the same kind, joined together, by a single covalent bond. ठीक है? Clear? Any confusions here? Now, this can easily be done when we have talked about something like fluorine, chlorine, bromine, iodine. Because these are diatomic gases joined together by a single covalent bond. This we can talk about sulfur also. Sulfur के अंदर भी single bond बनते चले जाते हैं sulfur के अंदर. Clear? लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो जाएगी when we talk about oxygen. जब हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एलिमेंट इज O2. O2 में दोनों ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड से जॉइंट है. और अगर हम उसको डबल बॉन्ड की बात करें, जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड. तो O2 के अंदर जो दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस है, उसको उसके हाफ को हम कोवेलेंट रेडियस नहीं ले सकते, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में ये डिफाइंड है दैट इट हैज टू बी अ सिंगल बॉन्ड. तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमें ऑक्सीजन के ऐसे कंपाउंड्स की बात करनी पड़ेगी जहां पे ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड. जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर हम ऑक्सीजन के डिस्टेंस को निकाल के उसको हाफ करके उसको कोवेलेंट रेडियस मान सकते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि ये कंपाउंड पेरोक्साइड कहलाते हैं. ऐसे पेरोक्साइड हमारे पास बहुत सारे हैं. अब ये एक पंगा है कि हम कौन से पेरोक्साइड को स्टैंडर्ड मानेंगे.
अगर मान लीजिए हम ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं CH3OOCH3, यहां पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। अब दिक्कत ये होती है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इस वजह से अगर अलग अलग किताबों में आपको इसकी वैल्यू डिफरेंट मिल जाए तो प्लीज डोंट फ्रीक आउट, अरे ऑक्सीजन का लेंथ चेंज हो गया। अरे लेंथ चेंज नहीं हुई है, किसी व्यक्ति ने किसी कंपाउंड में निकाल लिया, दूसरे ने किसी और कंपाउंड में निकाल लिया। अब ये थोड़ी ना है कि आप जब भी किसी कंपाउंड को बात करने लगेंगे या किसी भी वैल्यू को यूज करने लगोगे तो पहले आप जाके उस वैल्यू को डिटरमाइन करोगे। अरे भाई किसी ने डिटरमाइन कर रखी है, आप उसको यूज करोगे, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि उसने किस कंडीशन में डिटरमाइन की है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लाइट वेरिएशन। इसी वजह से जब भी हमें किसी वैल्यू को कंपेयर करना होता है तो हम अलग अलग सोर्स से वैल्यू नहीं लेते, हम सारी वैल्यूज को एक सोर्स से लेके कंपेयर करते हैं कि भैया जो इसने इसमें पंगा लिया बाकियों में भी लिया होगा। इट इज बेटर दैट वी हैव सेम एरर इन ऑल ऑफ देम। सब में अगर सेम एरर होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसीलिए जब भी किसी चीज को कंपेयर करना हो, टेक द डेटा फ्रॉम द सेम सोर्स, डू नॉट यूज डिफरेंट सोर्सेस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अलग अलग सोर्सेज से इसकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है और सारी वैल्यूज सही हो सकती है। क्लियर? समझ में आई बात? तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, कोवेलेंट रेडियस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दो स्पीशीज व्हिच फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोई स्पीशी ऐसी है जो कोवेलेंट एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, एटम्स की बात कर रहा हूं। एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड कहां बनेगा? एक जैसे एटम के बीच में, डिफरेंट एटम्स के बीच में बनेगा ना। हम तो एक पर्टिकुलर एटम का रेडियस निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए हम आयनिक की तो बात करेंगे नहीं। दो एटम्स ऑफ द सेम काइंड, ये भी जरूरी नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूं ये टाइटेनियम की, या मैं बात करता हूं कॉपर की, या मैं बात करता हूं गोल्ड की, या मैं बात करता हूं थालियम की, मर्करी की, इसकी कैडमियम की, रीनियम, टंगस्टन, फ्रांशियम, सीजियम, रुबीडियम, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो दीज आर मेटल्स। The metals do not form a covalent bond amongst them. मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है, और मेटेलिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से काफी डिफरेंट है। तो इस वजह से हम मेटल्स की कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ या कोवेलेंट रेडियस की बात नहीं कर पाते। वेरी ऑब्वियसली मेटल के अंदर मेटेलिक अरेंजमेंट है और मेटल के अंदर मेटेलिक रेडियस है। इज इट क्लियर? तो आप मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन लिखो। मेटेलिक रेडियस, half of the distance between two nearest atoms, half of the distance between two nearest atoms of the same metal in its metallic arrangement is known as metallic radius. Is known as metallic radius. Clear? समझ आ गई बात? फाइन। तो इस तरीके से हमारे पास एक कोवेलेंट रेडियस आ जाता है, एक मेटेलिक रेडियस आ जाता है। कभी कभी जैसे कि अगर हम यहां पे बात करते हैं, बेरिलियम है, बोरॉन है। बेरिलियम एक मेटल है, बोरॉन एक नॉन मेटल है। बोरॉन के अंदर कोवेलेंट रेडियस है, बेरिलियम के अंदर मेटेलिक रेडियस है। जब बेरिलियम और बोरॉन के रेडियस को हम कंपेयर करते हैं तो पता चलता है बोरॉन का रेडियस बेरिलियम से काफी छोटा है। अब उसके अलग अलग रीजन दिए जाते हैं, पर उसका ये रीजन भी दिया जाता है कि बोरॉन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि एक मेटेलिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड बिकॉज ऑफ विच साइज थोड़ा और छोटा हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा। इज इट क्लियर?
समझ आइए बस. So this is what we have as something called the metallic radius. ठीक है. अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाते, मेटेलिक बॉन्ड भी नहीं बनाते, इनफैक्ट बॉन्ड ही नहीं बनाते. द नोबल गैसेस. ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आया? जब हम नोबल गैसेस की बात करते हैं तो नोबल गैसेस कोई बॉन्ड नहीं बनाते. अब हाँ, आप में से कुछ कह सकते हैं नहीं सर, नोबल गैसेस के तो कंपाउंड बनते हैं. ओके फाइन, बनते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं. और जब भी हम किसी एटम के रेडियस की बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द आइडेंटिकल एटम्स. तो आइडेंटिकल नोबल गैस के एटम्स से कोई बॉन्ड कभी नहीं बनता. इज इट क्लियर? तो अब अगर हमें नोबल गैस का रेडियस निकालना है तो उसका तरीका ये होता है कि यू कूल डाउन द नोबल गैस, फ्रीज इट, सॉलिडिफाई इट. सो व्हेन यू सॉलिडिफाई द नोबल गैस, अब ये एक अरेंजमेंट बन गया उसके एटम्स का, बट ये एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है. ठीक है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन two non-bonded atoms, the nearest non-bonded atoms of the same element, is termed as the van der Waals radius. ठीक है? क्या कर रहा है भाई? सामने देख ले और लिखना शुरू करो. उधर जाओ यार, लिखो van der Waals radius. और van der Waals की स्पेलिंग ये है. This is the third radius. van der Waals radius. हाँ हाँ, आदमी है भाई. बाकी मुझे बहुत श्योरली नहीं पता, बट जहां तक मुझे पता वो आदमी था. तो पहली बात वो जानवर नहीं था, इंसान तो था ही, आदमी का पता नहीं. ओके, राइट द डेफिनेशन. van der Waals radius, half of the distance between the center of the centers of two nearest non-bonded, half of the distance between two nearest non-bonded atoms of the same element in its solid state. In its solid state. Clear? So that is what we term as the van der Waals radius. अब एक बात का ख्याल रखना कि van der Waals radius के अंदर किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बना. इतना तो आपको थोड़ा सा पता होगा ना कि जब बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा पास आ जाते हैं. तो van der Waals रेडियस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बना. तो एटम्स दे डू नॉट मूव नियरर देन व्हाट इज द मिनिमम. ठीक है, उसके ज़्यादा पास नहीं आते. और जब उसके पास नहीं आते तो ये जो van der Waals रेडियस है वो अब्रप्टली बहुत बड़ा आ जाता है. एंड देयरफॉर wherever we take the van der Waals radius, that is in the case of noble gases, हमें ये अच्छी तरह पता है कि ये जो रेडियस आ रहा है ये इसके एक्चुअल रेडियस से कहीं ज्यादा बड़ा है. Is it okay? So van der Waals radius is larger than the actual size. अब एक बहुत ही कॉमन सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि when we talk about chlorine and argon, the size of argon
which is reported in the periodic table is much larger than chlorine. अब बचपन में जब हमने ये सवाल किया था तो उन्होंने बड़े सारे आंसर्स दिए थे कि आर्गन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्शन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए आर्गन स्वेल हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, एंड दैट इज वाई उसका साइज बड़ा होता है। हंस मत, हमने तभी आंसर दिए थे, खुद ने लिखे हैं मैंने ये आंसर। बाद में रियलाइज किया जब पढ़ाना शुरू किया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी की पढ़ना शुरू किया, तब रियलाइज हुआ अबे यार क्या वाहियात सा आंसर लिखते थे। आर्गन का एक्चुअल साइज क्लोरीन से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन आर्गन का साइज क्लोरीन से बड़ा इसलिए आता है क्योंकि हम क्लोरीन के अंदर कोवेलेंट रेडियस लेते हैं जो उसके एक्चुअल साइज से छोटा है, जबकि आर्गन के अंदर हम वैन डर वाल्स रेडियस लेते हैं जो उसके एक्चुअल साइज से बड़ा है। And that is why the size of the noble gases turns out to be greater than the adjacent halogen atoms. Clear? The question लिखो, same question लिख रहा हूं, फिर आंसर लिखवा रहा हूं। Question is, the size of the noble gases, reported in the periodic table, the size of the noble gases reported in the periodic table is much larger than the size of that is the radius of adjacent halogen, size of the adjacent halogen, यानी कि नियॉन के कंपैरिजन में फ्लोरीन, आर्गन के कंपैरिजन में क्लोरीन, क्रिप्टन के साथ ब्रोमीन, ज़ेनॉन के साथ आयोडीन, रेडॉन के साथ एस्पेटाइन। तो द साइज रिपोर्टेड इज मच लार्जर ऑफ द नोबल गैसेस। ओके, लिखिए, बिकॉज in case of halogen, it is the covalent radius while in case of noble gases, in case of halogen, it is the covalent radius, while in the case of noble gases, it is the van der Waals radius, which invariably, in case of halogens, it is the covalent radius, while in the case of noble gases, it is the van der Waals radius, which is invariably larger than the covalent radius. Is that clear? एक्चुअल रेडियस लोगे कैसे? अरे कैसे? अब सपोज करने में तो कोई ये सपोज कर ले, सपोज तेरी नाक पे एक सींग है, सपोज तो कुछ भी कर सकते हैं ना, सपोज तेरी पूंछ है, फिर केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट सपोजिशन, केमिस्ट्री इज अबाउट ऑब्जर्वेशन। क्लियर? केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन सपोज से शुरू नहीं होता, अगर होता तो वाहियात क्वेश्चन होता है। सपोज कार्बन हैज 3 न्यूट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ 6। अबे अगर कार्बन के पास 3 न्यूट्रॉन होते 6 की जगह, तो कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो गए होते, वो बर्बाद हो गया होता। तो सपोज नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब वो एक जोक आया था ना कि एक आदमी को उसकी पत्नी ने कहा कि मान लो मैं आपकी हर बात मानना शुरू कर दूं, तो वो आदमी सोचना शुरू हुआ और सोचते हंसने लगा, यार मैं तो मान भी नहीं पा रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, मान ही नहीं सकता, ऐसा हो गया तो क्या होगा। वही हाल यहां पर है। अगर आपसे कोई कहता ना कि मान लो कार्बन के अंदर एक प्रोटॉन की जगह 4 प्रोटॉन डाल दिए जाए, अब वो कार्बन थोड़ी ना रहेगा, फिर कुछ और बन जाएगा। तो वही बात है। तो इसलिए केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट सपोजिशन, केमिस्ट्री इज अबाउट ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो यही रीजन है
कि हम नोबल गैसेस का एक्चुअल रेडियस निकाल ही नहीं सकते, हैलोजन का भी नहीं निकाल सकते। थ्योरेटिकली हैलोजन का बड़ा होना चाहिए नोबल गैस से, थ्योरेटिकली, बट ऑब्जर्वेशन में बड़ा आ जाता है नोबल गैस का, क्योंकि वो वैन डर वाल्स रेडियस है, वो एक कोवेलेंट रेडियस है। क्लियर? कुछ पूछता है? ठीक है, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस। मैं बताऊंगा तुम्हें थ्योरेटिकली ऑर्डर कैसे बनाते हैं, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। किसका? वेरी गुड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी थोड़ी देर में भाई साहब आके आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो समझाएंगे। नाम पता है? पता है तुम्हें नाम? तुम्हें ये पता है क्या होता है? टीचर ने? भाई गॉड, बहुत इंटेलिजेंट टीचर थे आपके। इनको तो 9th में बता दिया था, इनके ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ओके, फाइन एनफ। अब सबके टीचर उतने इंटेलिजेंट नहीं होते, तो मैं भी बताऊंगा, मैं भी इंटेलिजेंट हूं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट, ये अभी तो हमने एटॉमिक साइज क्या होता है वो डेफिनेशन समझी है, ठीक है। अभी हमने एटॉमिक साइजेस के ट्रेंड नहीं किए, एक छोटा सा एग्जांपल किया था कि वैन डर वाल्स रेडियस और कोवेलेंट रेडियस से क्या फर्क पड़ता, वो हमने किया है, बाकी फैक्टर्स अभी हमने नहीं किए। इज इट ओके? नाउ वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? तो डेफिनेशन लिख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, the minimum energy, ionization energy, the minimum energy required, और एक बात का ध्यान रखना, ionization energy is always required, the minimum energy required to remove the most loosely bound electron, the minimum energy required to remove the most loosely bound electron from the outermost shell, from the outermost shell of a neutral gaseous isolated atom, from the outermost shell of a neutral gaseous isolated atom is termed ionization energy। ठीक है, अब देखो, अगर एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो वो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं कि हम उस वैल्यू को मेजर नहीं करते, उसको लिखते नहीं है, लेकिन जब भी एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आती है, इट इज जनरली रिटन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है थोड़ा सा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था दैट व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू द इनफाइनाइट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फर्स्ट से इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो E नॉट की वैल्यू इज द नेगेटिव ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखी। इज इट क्लियर? अब आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ यहां पे एक चीज लिखी है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर? यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि हमने इस एटम को बाकी सारे इन्फ्लुएंस से दूर कर दिया है, क्योंकि बाकी इन्फ्लुएंस भी इस इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में फर्क डाल सकते हैं। तो न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, गैसियस वेपर फेज में है, कोई बॉन्ड्स नहीं है, आइसोलेटेड मतलब कि कोई दूसरा एटम इसके आसपास भी नहीं है। क्लियर? दैट इज व्हाट वी टर्म एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? अब कभी कभी किसी किसी किताब में एक और वर्ड लिखा होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
कई बार लोग जो लिखने वाले होते हैं उनको उनका मतलब भी नहीं पता होता है, एवी आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल को इंटरचेंजेबली यूज करते चले जाते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है, और वो फर्क सिर्फ स्पेलिंग का फर्क नहीं है, और भी फर्क है। ठीक है, अब कई बार मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो जवाब मिलता है सर आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट। मुबारक को बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो है ही कि यूनिट्स इनके फर्क है। एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल का सिर्फ वोल्ट, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो ये फर्क है, यूनिट्स का फर्क है, स्पेलिंग में फर्क है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, वो फर्क है, लेकिन इसके अलावा एक फंडामेंटल फर्क भी है। आयोनाइजेशन एनर्जी एक छोटा सा एग्जांपल है, वो ये कि अगर मान लीजिए आपको किसी बिल्डिंग में पानी पहुंचाना है बाल्टियां भर भर के, तो अगर मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग के अंदर पानी पहुंचाना है, उसके लिए एनर्जी ई लगती है, तो दूसरी बिल्डिंग में पानी पहुंचाने के लिए भी एनर्जी ई लगती है, तो दोनों बिल्डिंग में पानी पहुंचाने के लिए एनर्जी 2E लगेगी। ये बात समझ में आ रही है? जितनी एक काम में एनर्जी लगती है दूसरे काम में भी उतनी एनर्जी लगती है, तो दोनों काम में डबल एनर्जी लगेगी। मतलब कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर E एनर्जी लगती है, तो दो एटम से दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2E एनर्जी निकलेगी, और अगर 1 मोल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 1 मोल इंटू E एनर्जी लगेगी। इज दैट क्लियर? एनर्जीज आर एडिटिव, ऐड होती हैं। इज इट क्लियर? क्लियर। अब पोटेंशियल क्या होता है? यहां पे दो मकान है, इन दोनों मकान में पानी पहुंचाने के लिए मैंने एक टैंक बना दिया। अब टैंक की हाइट है एक पर्टिकुलर, ये टैंक की हाइट है, यहां पे ये टैंक लगा दिया। अगर एक मकान में, एक घर में पानी पहुंचाने के लिए टैंक की हाइट 10 मीटर्स होनी चाहिए, तो दो मकान में पानी पहुंचाने के लिए टैंक की हाइट कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर्स, 20 थोड़ी ना हो जाएगी। जब तक सारे के सारे मकानों की हाइट सेम है, तब तक मुझे टैंक की हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। द हाइट ऑफ द टैंक इज पोटेंशियल। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे V वोल्ट पोटेंशियल लगता है, तो अगर मैं 10,000 एटम में से भी इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो भी पोटेंशियल V वोल्ट ही रहेगा। पोटेंशियल्स ऐड नहीं होते। Am I clear? The energies are additive, potentials are not. अगर आपसे कोई कहता है कि the energy required to remove first electron from sodium atom is x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक सोडियम एटम में से निकालने के लिए x इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती है, तो दो सोडियम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? द आंसर इज 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई आपसे ये कहता है कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो पोटेंशियल मुझे लगाना है वो y वोल्ट्स है, तो दो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना पोटेंशियल? अगेन इट इज y वोल्ट्स। इज दैट क्लियर? पोटेंशियल एडिटिव नहीं होते। ठीक है, अब सोचो, मेरे पास सोडियम है, मेरे पास कैल्शियम है। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है x, ठीक है। कैल्शियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है 2x, तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? यू हैव टू पुट 3x एनर्जी। क्लियर? अगर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए y वोल्ट्स लगती है और कैल्शियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2y वोल्ट्स लगते हैं, तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू अप्लाई 2y। अगर मेरे पास अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो आई जस्ट हैव टू मेक द टैंक हायर देन द हाईएस्ट बिल्डिंग। मुझे सबकी हाइट ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? If we have the same potential, then you just have to use that potential to remove that particular thing. If you have different potential, just use the highest. Energy, you simply have to add every time. Same ho, different ho, just add them.
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एनर्जी, याद रहेगा। बट तुम्हारे लेवल पे सारे प्रैक्टिकल वर्क्स के अंदर वो इंटरचेंजेबली यूज करते बिना सोचे, तो इसलिए ज्यादा मत देना। तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन आना सिवाय आईआईटी एडवांस के और कहीं पॉसिबल नहीं है कि वो पोटेंशियल पूछ रहे हैं या एनर्जी पूछ रहे हैं। बाकी नारायणा में या बाकी किताबों में दे डोंट इवन बॉदर। आईआईटी वाला पूछ सकता है क्योंकि उसको पता तुम कहां गलती करते हो। वो ऐसे ही फालतू के सवाल पूछते हैं, बहुत सिंपल, और बंदा बाहर निकल के ऐसे पकड़ के बैठा होता है, यार ये पता तो था, हमने गलती क्यों की, ऐसा होता है। Clear? So you have understood the difference between potential and energy? Clear? Just the difference is energies are additive, potentials are not. If the potential required is the same, just take the same value, single value. And if they are different, choose the highest. That's it. Clear? Energy हर केस में add होगी। ठीक है, समझ में आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट पर छोटी सी बात, वो ये, अगर मैंने कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए। जैसे ही मैं कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इट इज गोइंग टू बिकम कैल्शियम प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की, तो याद रखना किसी भी स्पीशी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पहले इलेक्ट्रॉन निकालने से ज्यादा मुश्किल होता है, नो एक्सेप्शन। क्लियर? ये जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है, इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। ठीक है, जो अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं कि पॉजिटिव स्पीशी में से जो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है, दैट इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आप कहोगे सर अगर दो पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा वो कम होगा या ज्यादा? अबे यार वो और ज्यादा होगा यार, पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा हो गया तो नेगेटिव को निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो सब्सिक्वेंट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पहले वाली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इज इट क्लियर? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, हमेशा ज्यादा होंगे। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन here? Any problems? Obviously वो भी ज्यादा होगा। अरे यार अगर पहले मकान में पानी पहुंचाने की जगह ज्यादा एनर्जी लग रही है, दूसरे में और ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो ऑब्वियसली वो दूसरे वाले की एनर्जी ज्यादा है ना। ठीक है, पहले वाले मकान ने ब्लॉक कर दिया, मुश्किल हो जाएगा। ये मान लो जब सब्सिक्वेंट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस बिल्डिंग। ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ये तीसरा फ्लोर है। पहले फ्लोर में डालने के लिए एनर्जी और पोटेंशियल दोनों है, दूसरे फ्लोर के ऊपर पानी ले जाने के लिए एनर्जी पोटेंशियल दोनों ज्यादा है। यहां पे और ज्यादा है, यहां और ज्यादा है। पोटेंशियल और एनर्जी का ट्रेंड सेम है, फर्क सिर्फ इतना है वो एडिटिव है वो नहीं, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, जहां एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा है एक पर्टिकुलर एटम के लिए, पोटेंशियल भी ज्यादा है। ठीक है, इज इट क्लियर? So that's what we have as something called ionization energy. होता क्या है वो मैंने तुम्हें बताया। Is it clear? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जितना अभी तक की क्लास में किया है कुछ पूछना, एंड इट्स योर प्रॉब्लम दैट यू नीड टू टेल मी। पड़ोसी की प्रॉब्लम मत पूछने शुरू कर देना। हाँ होता है, बिल्कुल होती है, क्योंकि वैन डर वाल्स ही है, और क्या है, बॉन्ड थोड़ा बना हुआ दोनों के बीच में। यार तुम दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है तो तुम दोनों के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, फिर ये देखो
तुम्हें अभी ये पता ही नहीं कि वैन डर वाल्स फोर्सेस होते क्या है। जब तुम्हें वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं ये नहीं पता, तो ये तुम कैसे बोलोगे कि जहां बॉन्ड नहीं बना वो वैन डर वाल्स होगा। अभी तक तो तुम्हें ये भी नहीं पता बॉन्ड्स कितनी तरह के होते हैं। तुम्हें पता है वैन डर वाल्स फोर्सेस क्यों होते हैं, तो फिर मैं कैसे बताऊं कि वैन डर वाल्स फोर्स है या नहीं। तुमने मुझसे सवाल पूछा कि ग्रेफाइट और ग्रेफाइट के लेयर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है या नहीं। मैंने कहा हाँ वैन डर वाल्स फोर्स है। तुमने पूछा क्या, मैंने कहा बॉन्ड नहीं बना हुआ वैन डर वाल्स फोर्स। अब तुमने आगे पूछ लिया कि हर जगह, अब वो हर जगह तो मैं नहीं बोल सकता ना। क्लियर? हर जगह मैं सिर्फ तब बोल सकता हूं जब तुम्हें वैन डर वाल्स फोर्स का मतलब पता हो। वो पता नहीं है अभी तुम्हें। इज इट ओके? ग्रेफाइट के लेयर्स के बीच में दैट इज द वैन डर वाल्स फोर्स, इसलिए वो डिस्टेंस भी वैन डर वाल्स रेडियस ही है। मैंने अभी तक बताया ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये बताया इनिशियल एनर्जी होती क्या है। मैंने तुम्हें ये बताया एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है। फिर पूछ ले, मैक्सिमम यही तो होगा। मैं जवाब नहीं दूंगा, तेरी एस्पेसी कर दूंगा, और क्या होगा? और तो कुछ होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है, तो वो है। हाँ तो वही तो है ये। कुछ पूछना है? ओके देन। हाँ क्योंकि रिपीट नहीं करते। एटॉमिक मास तो सिर्फ इंक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता है कभी अक्रॉस द पीरियड। ऐसा थोड़ी ना कि यहां पे आने के बाद फिर यहां पे देखो फिर से वहीं आ गया, ऐसा होता है क्या? तो पीरियोडिक कैसे हो गया? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, कहीं इंक्रीज ही होता है ना। ठीक है, एटॉमिक मास एडजेसेंट एलिमेंट में कहीं कहीं डिक्रीज हो सकता है, लेकिन डाउन द ग्रुप कहीं ऐसा है कि डिक्रीज होता हो या सेम रहता हो। फिर पीरियोडिक कहां से हो गया? ठीक है ना। डेंसिटी भी एब्रप्ट है। एक एलिमेंट की डेंसिटी जान के आप पूरे ग्रुप की डेंसिटी नहीं निकाल सकते, और डेंसिटी बढ़ती ही है डाउन द ग्रुप, आइडेंटिकल तो होती ही नहीं है। फिर क्लियर? इसीलिए ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं है। इन प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक टेबल से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि पीरियोडिक टेबल से नहीं निकाल सकते, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है। क्लियर? देखो दो सवाल है, विच ऑफ दीज आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस है। क्लियर? कोई और कंफ्यूजन? हाँ जी। Across the period, there is a gradation in physical property. तो gradation क्या होता है? तुम्हारी ग्रेड है, कितनी ग्रेड आई थी तुम्हारी? A1। तो ग्रेड क्या होता है पहले ये बताओ। सर एक तरीके से मेजर है किस चीज का? मार्क्स जो हम लाए। ओके, मार्क्स का। तो ग्रेड का क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशन। अरे रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? किसका रिप्रेजेंटेशन है? मार्क्स का। ग्रेडेशन इसका मतलब है कि तुम कितनों से अच्छे हो, तुमसे नीचे कौन सा है तो उसके नीचे कौन सा है, उसे कहते हैं ग्रेड। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज का ग्रेडेशन क्या होगा? बढ़ती जाएंगी। चेंज। बढ़ना नहीं, चेंज। ग्रेडेशन इज जस्ट अ चेंज, नॉट नेसेसरली इंक्रीजिंग, नॉट नेसेसरली डिक्रीजिंग, चेंज। जब भी कोई चेंज आता है वो हम कहते हैं ग्रेडियंट, यानी कि इसमें कुछ चेंज है, ये कम है ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, ये कम है, कुछ भी हो सकता है, बट चेंज, दैट्स ग्रेडियंट। ठीक है। जहां भी चेंज आ रहा है हम कहते हैं ग्रेडेशन, जहां पे चेंज नहीं आता वी से नॉन ग्रेडेशन, डीजेनरेट। जहां चेंज है वो जेनरेट। इज इट क्लियर? तुम यार केमिस्ट्री से ज्यादा इंग्लिश के सवाल पूछते हो। ग्रेडेशन इज इंग्लिश वर्ड, नथिंग टू डू विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यूज कर लिया एज पर इट्स मीनिंग। इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है केमिस्ट्री में, वही है जो इंग्लिश में है। हाँ भाई, कुछ पूछा? इतनी लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग कर रहा था, एसटीडी कॉल। पूछ ले क्या पूछना है।
आ गया उसने पूछा, उसने सुना भी नहीं क्या पूछा। अच्छा उसके पीछे तो उससे पूछ रहा था। ये छोटे छोटे बच्चे पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम बिना बच्चे बने ही बड़े हो गए। ओह ठीक है, ओह इज दिस क्लियर? So we have cleared about what is atomic radius, what is ionization energy. I have not told you the reasons. Clear? Now let's talk about electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy ionization energy का exact उल्टा है। वो ये कि when we talk about electron gain enthalpy, we talk about the energy change when the electron is added to the outermost shell of a neutral gaseous isolated atom. ठीक है? That is what we talk about the change. That's what we talk about the gain enthalpy. ठीक है? Definition लिखिए, electron gain enthalpy. The energy or enthalpy change. The energy or enthalpy change when an electron is added. The energy or enthalpy change when an electron is added to the outermost shell of a neutral gaseous isolated atom. ठीक है? क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखो। लेट अस से हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ए, ठीक है? इट गोज टू सिस्टम बी, ठीक है? एंड देयर इज सम एनर्जी चेंज। क्लियर? ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए से बी में जब रिएक्शन हुआ तो लेट अस से सम एनर्जी वाज रिलीज्ड, कुछ एनर्जी निकली। जब एनर्जी निकलती है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? द एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। तो यहां पे बी प्लस हीट आ गया, हीट इज रिलीज्ड आउट। ठीक है? नाउ हमें जब भी एनर्जी चेंज निकालना होता है, इनफैक्ट जब भी हमें चेंज निकालना होता है, इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहां पे इट इज द एनर्जी ऑफ बी माइनस एनर्जी ऑफ ए। अच्छा एक बार बताओ, ए और बी में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? क्यों? सर माइनस हो रहा है। बताओ वन और टू में से कौन सा ज्यादा है? बता वन और टू में से कौन सा ज्यादा है? क्यों? वन में से माइनस हो रहा है वो तो। ये कौन सी बात हुई? जिसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमेशा छोटा होगा। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। अब बता कौन सा ज्यादा है? कौन सा ज्यादा होगा? ए की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ए से हमें दो चीजें मिली हैं, बी मिला है और हीट मिली है। तो बी में ये हीट नहीं होगी ना जो ए में थी। क्लियर? Whenever we have exothermic reaction, the energy of the product is less than energy of reactant. तुम्हें क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
अरे यार एंडोथर्मिक का मतलब है A प्लस हीट गिव्स B, ये एक्सोथर्मिक है और ये एंडो है। तो इज इट नॉट वेरी ऑब्वियस कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? जब भी हम चेंज निकालेंगे, चेंज हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ठीक है ना? जब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। तो अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो जो वैल्यू आएगी, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन एनर्जी, ये वैल्यू एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव आएगी। ये बात समझ में आई? आराम से दोबारा सोचो। When we have an, देखो ध्यान से सुन लो, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत तंग करता है। क्लियर? ध्यान से समझ लो, बाद में इसके बारे में सोचना भी मत, खासतौर से तो सोचना मत इस बारे में, ठीक है? क्योंकि जहां सोचना नहीं है। विद्या बालन कहती है, मैंने थोड़ा कहा है। ओके, तो अभी ध्यान से समझ लो। When we talk about the exothermic reaction, then the reactant gives the product and heat or energy. That energy is being removed. The product have that much energy less than the reactant. Clear? तो अगर हम प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी सब्ट्रैक्ट करें तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, एनर्जी चेंज डेल्टा E will be negative. So for an exothermic reaction, the change in energy is negative. ठीक है? While for an endothermic reaction, हमने रिएक्टेंट में एनर्जी डाली है, बाहर से डाली है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। So for an endothermic reaction, the change in energy will be positive. ये बात समझ में आ गई? श्योर? सोच लो एक बार। ठीक है? फ्यूज उड़ गया उसका? मैंने कहा पता नहीं अभी से उड़ गया हो। हाँ, आर नॉट नेगेटिव कब से था? ई नॉट नेगेटिव है। ई नॉट नेगेटिव क्यों है? क्यों आया था नेगेटिव? Why is the energy of the electron in the first shell of hydrogen negative? Compared to the infinity. हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन is moving from the infinity to the particular shell. Attractive force है, आते हुए एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसके कंपैरिजन में नेगेटिव है। एनर्जी अपने आप में नेगेटिव नहीं होती। क्लियर? एनर्जी इतना तो पता होगा, इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग नहीं होता। क्लियर? तो वो नेगेटिव है इन कंपैरिजन। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके नहीं, कुछ बोलना है बोल दे यार, वो फिर लॉन्ग डिस्टेंस बोलेगा और तुम्हारे लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग के चक्कर में वो पिस जाता है। कभी आगे से कूद रहा होता है, कभी पीछे से कूद रहा होता है। एक फिर शुरू हो गया। क्या फर्क पड़ता है? जान के करेगा क्या? ऐसी कैटरीना कैफ की हाइट कितनी है?
सर 5 फुट 7 इंच नापी थी? लंबी है सर। आप नाप लो जाके। मैं क्यों नापूं? सर आपने मुझे पर जान के करेगा क्या? ऐसी इसलिए पूछा इसने एंथैल्पी के बारे में। सारी फालतू चीजें जानने की आदत है। Okay, we don't need to know the enthalpy definition for the time being. Clear? आपके लिए मानना इतना काफी है कि एंथैल्पी इज एनर्जी। ठीक है? और ज्यादा अच्छी बात जाननी है तो हीट मान लो, अपने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके? नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। डेफिनेशन आपने लिख ली। The enthalpy change or the energy change when the electron is added to the outermost shell of the neutral gaseous isolated atom. Now, if the energy is released, the electron gain enthalpy will be negative. And if the energy is absorbed, it will be positive. कोई confusion इसमें? ठीक है? Energy release मतलब exothermic, energy absorbed means endothermic. Endothermic के अंदर change is positive, exothermic में change is negative. Okay. अब जब हम एक और टर्म की बात करते हैं, अब ये ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ टर्म, ओल्ड टर्म, विच इज सपोजिटली नॉट यूज्ड, बट आईआईटी के पेपर में कुछ भी आ सकता है एंड यू नीड टू बी केयरफुल विद द टर्म। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नॉट एनर्जी चेंज. Electron affinity is the energy released. Clear? Electron affinity is not product minus reactant. No, it is not. Electron affinity is this. Clear? Definition same है. फर्क सिर्फ इतना, एनर्जी चेंज की जगह, चेंज वर्ड की जगह रिलीज आ जाएगा, लेकिन उस एक शब्द के चेंज होते ही एक ड्रास्टिक फर्क पड़ता है। जब रिलीज होगी तो पॉजिटिव होगी, एब्जॉर्ब होगी तो नेगेटिव होगी। तो जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये, दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव ऑपोजिट साइन। वैल्यू में थोड़ा सा फर्क होता है, वो रीजन अलग है, लेकिन जो मेजर फर्क है, जिससे तुम्हें फर्क पड़ेगा, वो है साइन। सेम का कंसिडर किया है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी दे सकते हैं। मैग्नीट्यूड्स तो ऑलमोस्ट सेम है ना, तो अगर मुझे ट्रेंड बनाना है तो ट्रेंड में एफिनिटी का भी बना सकता हूँ, गेन एंथैल्पी का भी बना सकता हूँ, उसमें तो दिक्कत नहीं है। यही तो सवाल आता है एग्जाम में। सवाल पूछ लेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, या पूछ लेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड नंबर वो उसमें सेम होगा, लेकिन साइन उल्टे होंगे, एक डिक्रीजिंग हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग हो जाएगा। यही तो सवाल है, यही तो आपको ध्यान रखना है। इज इट ओके? ठीक है, सुनाओ। डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी लिख लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द एनर्जी रिलीज्ड, बाकी आगे सेम लिखो। The energy released when an electron is added to the outermost shell of a neutral gaseous isolated atom, that is called electron affinity. ठीक है, आगे लिखिए। They have almost the same magnitude. Electron gain enthalpy and electron affinity have almost the same magnitude. Electron gain enthalpy and electron affinity have almost the same magnitude, but
opposite sign. Full stop. Hence, the trend of, hence, ये लिखो, electron affinity and electron gain enthalpy have almost the same magnitude but opposite sign. Hence, the trends are exactly opposite. ठीक है, आगे लिखिए. The slight difference in the magnitude slight difference in the magnitude is due to the different ways of obtaining these values. Full stop. Electron affinities are theoretically calculated. For 0 Kelvin. That is minus 273.16 degrees Celsius. Okay? They are theoretically calculated for 0 Kelvin, while electron gain enthalpy are measured practically at normal temperature, that is 298 Kelvin. ठीक है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड में जो फर्क है, हाँ, पड़ता है ना, तभी तो मैग्नीट्यूड फर्क है. दिख तो रहा है, लिख तो देखो तुझे क्या लिखा है तुमने. Is that okay? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात. मेरे पास एक एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया. अगर एक एटम में मैं इलेक्ट्रॉन डालता हूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एनर्जी रिलीज हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एनर्जी एब्सॉर्ब, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन डालने के बाद मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन डालता हूं तो अंडरस्टैंड दैट एक इलेक्ट्रॉन डालते ही वो एटम नेगेटिव हो चुका है. क्लियर? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैं डालूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होगा, वो अपनी मर्जी से नहीं जाएगा. तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए मुझे एनर्जी सप्लाई करनी ही पड़ेगी. ठीक है? On adding the first electron, energy may be released, may be absorbed, but the addition of second electron will always require energy. It will never release energy. Is it clear? समझ में आ गई ये बात? याद रख लोगे? तो मेरे को बाद में ये मत बोलना सर ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है. क्लियर? लिख लो. Addition of first electron to an atom. Addition of first electron to an atom may release or absorb energy.
but the addition of the second electron, but the addition of second electron to any atom, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा atom है, but the addition of second electron to any atom would always require energy, that is, it will absorb energy. ठीक है? That is what we have as electron affinity or electron gain enthalpy and the difference between the two. ठीक है? Now, electronegativity. ठीक है? Electronegativity is a very simple definition. It is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron in a bond towards itself. It's a tendency to attract. Clear? इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे गेन करेगा. गेन करना जरूरी नहीं है, बस अट्रैक्शन होना चाहिए. That is electron negativity. ठीक है? लिखो. भूल जाते हो, क्लास में हो, सत्संग में नहीं हो. देखो, electronegativity. The tendency of an atom, to attract shared pair of electron in a bond, tendency of an atom to attract shared pair of electron in a bond towards itself is termed electronegativity. अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि जब हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इट्स लाइक ए टग ऑफ वॉर. दो एटम्स से दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं, जो खींच लेता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का सीधा सीधा मतलब यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज कंपेयर्ड, एब्सोल्युटली मेजर्ड नहीं. ठीक है? बाकी सारी क्वांटिटीज मेजर्ड है प्रॉपरली, एब्सोल्युटली वैल्यू है उनकी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर्ड है, मेजर्ड नहीं है. मेजर्ड है यार, वो भी दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस हाफ, कंपेयर थोड़ी ना है. लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दिक्कत ये है कि आपको कहीं पे किसी को जीरो या किसी को मैक्सिमम मानना पड़ेगा, उसके कंपैरिजन में निकलेंगे. ठीक है? इज इट ओके? अभी तो नेगेटिविटी तो समझ ले, पॉजिटिविटी बाद में समझेंगे. सर हर एलिमेंट वेपर पर आता है. हाँ लेकिन डेफिनेशन तो वेपर की होती है कि जो हीट करने पे गैसेस होता है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है. तो हर एलिमेंट के बनाने में दिक्कत क्या है? सर वो डेफिनेशन के खिलाफ हो गया ना. क्यों? सर नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं है तो एट अ गिवन टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ? रूम टेम्परेचर जबरदस्ती है. मैं अंटार्कटिका पे अपना रूम बनाऊंगा, तुम कहोगे मैं तो प्लूटो पे बनाऊंगा, बना ले भाई. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना कि वो वेपर है या गैस है. टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, बनेगा. ओके, समझ आई बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आया? वो क्या जल्दी है, अभी क्लास कहाँ ओवर हुई है? बैग पैक करना शुरू हो गए हो. हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कंपैरिजन, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती. क्लियर? अब ये बात फिर से ध्यान से सुन लो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी का मतलब है लैक,
deficiency. तो electronegativity is a word for electron deficiency. जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है, मतलब उसके अंदर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक होता है नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जो नेगेटिव है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, वो और गेन नहीं करना चाहता। समझ आई बात? तो नेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आर ऑपोजिट। समझ लोगे इसको? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का समापन करेंगे। हाँ, ये थ्योरी है पूरी।